student, welcome in this lecture series of Power System 1 as per prescribed by the Dr. Abdul Kalam Technical University Uttar Pradesh, and the subject code is your KEE 501. So, friends, when we are talking about the basic structure of the power system, so one question came into the mind is what is power system structure. So, actually the power system structure is what? It is a combination of different component by which we can deliver the power to the कंज्यूमर फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन. तो ओवरऑल जो हमारा पावर सिस्टम स्ट्रक्चर होता है, इसका पूरा पर्पज़ है कि जनरेटिंग स्टेशन से पावर को कंज्यूमर एंड के तक पहुंचाने का काम करना. सो दैट इज़ द थिंग्स बिहाइंड दैट. सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम, सो इन पावर सिस्टम स्ट्रक्चर एवरी पावर सिस्टम हैविंग अ 3 मेजर कंपोनेंट. किसी भी पावर सिस्टम स्ट्रक्चर के 3 मेजर कंपोनेंट होंगे. पहला जनरेशन यानी सोर्स ऑफ द पावर, आइडली विच इज़ स्पेसिफाइड वोल्टेज एंड द फ्रीक्वेंसी. तो जनरली इसको हम जनरेटिंग स्टेशन को सोर्स ऑफ पावर भी बोलते हैं. इस स्टेशन का जो मेन पर्पज़ है वो है पावर को जनरेट करना. बल्क अमाउंट ऑफ द पावर विल बी जनरेटेड हियर एंड देन इट विल बी डिलीवर्ड टू द कंज्यूमर थ्रू द different other segments. Now the second part of the power system structure is your load station. So load station is what? Load stations are basically the area or the section where the power will be consumed. So वो area जहाँ पर consumer हैं, ये different type के consumer like residential consumer, industrial consumers or the your commercial consumers. So ये पूरा section हमारा कहलाता है, that is known as a load station. And the third major part is known as a transmission system. So transmission system is what? The purpose of transmission system is to interconnect the generating station to the load station. तो generating station को load center से जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? ट्रांसमिशन सिस्टम का यूज़ करते हैं. एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम इज टू डिलीवर द बल्क अमाउंट ऑफ द पावर फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन टू द कंज्यूमर साइड. सो ऑब्वियसली apart from the your generation, load and transmission, there are some other components are also required to deliver the power to the consumer side. So as shown in this picture, you can see here the part A is known as your power plant. This here we are generating the power and then that power is given to the substation where we are going to step up the voltage as per the transmission level. So the segment B is known as a step up transformer by which we can step up the voltage at the transmission level and then it will be given to the transmission line. So this particular C part tower representing basically a transmission system. Then again this transmission power from the transmission system to the transmission substation where we connect the multiple distribution system as it is shown in a figure in form of segment number E. Now the E is known as the distribution substation where we condition the power according to the consumer side. So that is the overall thing related to your supply system, and this distribution system is again reduce the voltage level at the consumer level and deliver to the consumers. So this is the overall picture related to your basic structure of the power system. Now if we are talking about the major component of a power system, so here we are going to discuss, यहाँ पर हम discuss करेंगे कि कौन कौन से वो major component हैं जो power system के अंदर यूज़ किए जाते हैं. So friends, the first major component is generator. So this picture representing generating station जहाँ पर एक large size का bulk size का एक power station represent हो रहा है. Second major component is known as a power transformer. So as you know, the transformers is basically what? Transformer is basically means converts the voltage, either it will be step up by the transformer or it will be a step down by the transformers. So transformer का main purpose क्या है कि generating station से जब हम consumer तक power deliver करते हैं तो during this transfer we require a multiple level of the voltages, and that voltages we can achieve by the help of these transformers. So power transformer आप कह सकते हो कि ये एक major component है. Second major then third major part of any power system network is what? That is a transmission lines. So the picture depicted
of a transmission line structure. Means here the conductors are there, transmission towers are there, and these are basically provide the connective medium in between the generation and the consumer. And then the next your major component is your सब स्टेशन. तो जो सबसे बड़ा जो मेजर पार्ट होता है वो सब स्टेशन है. एज यू नो कि जब हम पावर को डिलीवर करते हैं कंज्यूमर को, तो उसके लिए हमें पावर को प्रोसेस करना पड़ता है और कंडीशनिंग करनी पड़ती है, लाइक अ पावर सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कंडीशनिंग. तो जितनी भी पावर के साथ पावर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की बात हो, या पावर को वोल्टेज लेवल को कंट्रोल करने की बात हो, या हमें अदर किसी तरह के ऑपरेशन एंड कंट्रोल इम्प्लीमेंट करने हो पूरे पावर सिस्टम स्ट्रक्चर में, सो वी रिक्वायर्ड अ सब स्टेशन नोड्स. सो सब स्टेशन इज़ नॉट ओनली प्रोवाइडिंग द मीन्स प्लेस जहाँ पर आप ये सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट it is used as a node into the power network, where you can connect the multiple segment, you can connect the multiple section of a power network. So now we are going to discuss the next topic, that is a power supply system. So when we are talking about the power supply system, so the major part is your generator. So what is generator? So generator is basically it is a simple turbo alternator by which we can generate the electrical energy in a large amount. So these generators are placed in any generating station, like as you know, these are maybe the thermal power plants, hydroelectric power plants, nuclear power plants. So several type of generating stations are there. So on the basis of their generation capacity and on the basis of their installation location, हम जनरेशन को कई पार्ट में डिवाइड करते हैं, मीन्स कंसीडर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द लार्ज पावर स्टेशन मीन्स दोज जनरेटिंग स्टेशन हुज कैपेसिटी इज near about more than 100 megawatt capacity, or you can say that ki they having a larger capacity to generate the power and deliver to the load station. Second category of the generation is what? Small independent system power generators. So small independent power generators are what? These are also known as the individual power producers. They are the independent from the grid operation, but they are connected with the grid, they are connected with the transmission system. So if it is required to give the power to the grid, or if it is required to collect the power from the grid, so they can exchange the power in between them. तो वो एक दूसरे के बीच में पावर को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं. Now the third major part is small embedded generators, that is like nowadays we are talking about the solar power, wind power, small gas power plant, small hydroelectric power plant. So when we are talking about the small scale generating stations, those who are directly connected with a distribution network or as a distributed generation, तो उसको हम बोलेंगे स्मॉल इंडिपेंडेंट जनरेटर. सो आगे के टॉपिक में हम इसे थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे. नाउ द सेकेंड मेजर पार्ट इज योर ट्रांसमिशन सिस्टम एंड टाई लाइन्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we should understand what is the transmission system. So transmission system is nothing else, it is a network of interconnection of different transmission line. As you know कि from the generating station to the consumer end, there are multiple transmission lines are required. So what is the purpose of these transmission line? The purpose of these transmission line is to connect the each and every segment. तो इसमें हमें एक पार्ट होगा ट्रांसमिशन लाइन और उसका नेटवर्क, और दूसरा पार्ट हम कहेंगे टाई लाइन्स. सो टाई लाइन्स आर बेसिकली इट इज सिंपली वी कैन से दैट कि ट्रांसमिशन लाइन्स आर, suppose if you have a area 1 and if you have a area, एक दूसरा एरिया है A2, आपके पास दो डिफरेंट एरिया हैं पावर नेटवर्क्स के, पावर सिस्टम के, एंड इन एरिया 1 में भी कई मल्टीपल जनरेटर्स हैं और एरिया 2 में भी मल्टीपल जनरेटिंग स्टेशंस प्रेजेंट हैं, और साथ के साथ इनके अपने लोड स्टेशंस भी कनेक्टेड हैं. सो बट एंड बोथ द एरिया आर एक्सचेंजिंग द पावर इंडिविजुअली. यानी अगर हम बात करें एरिया 1 या एरिया 2 की, तो दोनों ही एरिया आपस में पावर को अपनी पावर के ट्रांजैक्शन को इंडिविजुअली कर रहे हैं.
Now if you want to exchange the power in between area 1 and area 2, so we require a tie line. So that is the basic concept of tie line. Means tie line basically है क्या? So tie lines are also a transmission line, but the only small difference between a general transmission line and your tie line is what? Transmission lines are is a part of a transmission network in a particular area, or it is a part of a transmission system, and at the second side the tie lines are only used to transfer the power from one area to another area. तो इसका जो मेन पर्पज़ है वो एक एरिया से दूसरे एरिया को केवल पावर को डिलीवर करना है. नाउ द इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड पार्ट, दैट इज अ सब ट्रांसमिशन सिस्टम. So sub transmission system, you can say that the second level of the transmission system, इसको हम second level का ट्रांसमिशन सिस्टम कह सकते हैं, क्योंकि जब हम बल्क में पावर ट्रांसफ़र करते हैं तो जनरली हम हाई वोल्टेज एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, एंड द वोल्टेज इज़ एट द वेरी हायर लेवल. अगर हम वोल्टेज के लेवल को डिफाइन करें, सो वोल्टेज आर कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरी, लो वोल्टेज and the high voltage category. And low voltage category is means if your voltage level is below 100 volt. So इसको हम 100 volt के नीचे के वैल्यू को बोलेंगे कि ये हमारा लो वोल्टेज लेवल है. और if your voltage level is a high level voltage, so it will be further categorized into the different category. So ये एक another topic है, और डिटेल में इसको जब वोल्टेज लेवल डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी तो वहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, the higher voltage level will be further categorized into the three part: high voltage, then second one is the EHV, extra high voltage, and third part is known as a ultra high voltage level. So ये तीन तरह के लेवल आपके सब मीन्स वोल्टेज लेवल डिफाइन होते हैं. सो हमारा जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है वो बेसिकली आइदर इट विल बी वर्क एट द EHV लेवल और बियॉन्ड. मीन्स EHV एंड बियॉन्ड लेवल पे हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम नाउ डेज ऑपरेट हो रहा है. और अगर हम सब ट्रांसमिशन लेवल की बात करें, सो सब ट्रांसमिशन लेवल विल बी ऑपरेट एट द लोअर लेवल, मीन्स इट्स अ हाई वोल्टेज लेवल. सो दैट इज द बेसिक कैटेगरी क्लासिफिकेशन ऑफ योर ट्रांसमिशन सिस्टम. देन थर्ड पार्ट इज योर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मीन्स बेसिकली इट इज़ अ कंज्यूमर साइड पावर डिलीवरी सप्लाई सिस्टम. अगर हम बात करें कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, सो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंज्यूमर साइड पे कंज्यूमर को ट्रांसमिशन नेटवर्क के से कनेक्ट करने के लिए एक नेटवर्क के तौर पे यूज़ किया जाता है. एंड द पर्पज़ ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ व्हाट? टू गेट द पावर एट द लोअर वोल्टेज लेवल और एट द यूजफुल लेवल, और इससे हम कंज्यूमर को फीडर के थ्रू पावर प्रोवाइड कर सकते हैं. सो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ फर्दर कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स: primary distribution system and secondary distribution system. Primary distribution system is what? Primary distribution का काम होता है कि आपको मेन सब स्टेशन, मेन डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से पावर को कंज्यूमर के नियरेस्ट सब स्टेशन तक, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक ले आना. सो नॉर्मली जब हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करते हैं तो इनका ऑपरेटिंग वोल्टेज लेवल ट्रांसमिशन एंड सब ट्रांसमिशन से भी बिलो होता है. सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लेवल आर नोन एज द डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई सिस्टम विच इज़ नियर टू योर हाउसेज. लाइक आपके घर के पास जो ट्रांसफार्मर कनेक्ट है, दैट इज़ कनेक्टेड विथ योर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. एंड द थर्ड पार्ट इज, एज यू नो, द कंज्यूमर्स, दोज हु आर कंज्यूमिंग द पावर फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सिस्टम. सो लोड को भी हम कई कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. कंज्यूमर्स आर ऑल्सो डिवाइडेड इंटू डिफरेंट पार्ट्स. व्हाट? द लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स, वो कंज्यूमर जो बहुत बल्क अमाउंट में पावर को कंज्यूम करते हैं, लाइक स्टील प्लांट, एल्युमिनियम प्लांट, और एनी अदर टाइप ऑफ plant where the large amount of power is required for any type of industrial processing. Now the second is the medium large consumer. Medium large consumers are those industries, those who are collecting the power at the little bit lower level as compared to the large industrial consumers. And the third is your small consumers, all residential area, agricultural load, means your commercial load, small scale industrial loads, and your municipal loads. These are connected with your called as a small consumer load. So these are the
complete you can say there are different parts of any power supply system. Now the question, how we can integrate the generation with the transmission system, then transmission is connected with the distribution system, and then distribution system connected with the consumer. So the major part is your transformer. So transformer or those devices which are used at the each stages. जब भी हम एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट के साथ इंटरलिंक करेंगे तो वी रिक्वायर्ड ट्रांसफार्मर्स, हमें ट्रांसफार्मर्स की ज़रूरत पड़ेगी. क्यों ज़रूरत पड़ेगी? जैसा मैंने पहले कहा कि वाई द ट्रांसफार्मर्स आर रिक्वायर्ड. ट्रांसफार्मर्स का जो मेन पर्पज़ है दैट इज़ योर टू चेंज द वोल्टेज लेवल एज पर द रिक्वायरमेंट. सो ट्रांसफार्मर विल बी यूज एज अ स्टेप अप और इन अ स्टेप डाउन मोड. तो ट्रांसफार्मर दोनों ही मोड में ऑपरेट हो सकते हैं. सो नाउ so this is the overall structure of a power transmission supply system, where you can see that a generating station is connected with a step up transformer at the toppest one part, this one, and this transformer transfers the electricity to the transmission network at the higher voltage level, and as I told you, that is the EHV level. EHV level will be started from 132 kilovolt and above. So it will be more than 132 kilovolt. Now this transformer again the transmission system is connected with your transmission substation, where your higher voltage will be reduces at the sub transmission level and it will be given to the sub transmission segment, and sub transmission segment having a different type of a distribution substation. Means these sub transmission levels are connected with a distribution substation, and these distribution substation delivers the power to the different transformer which is near to the load station. And the purpose of these transformers are what, कि आपको जो यूजेबल लेवल ऑफ वोल्टेज है, यूजेबल लेवल ऑफ वोल्टेज क्या हो सकता है कि जैसे आप अगर सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम की बात करें, सो एट योर लेवल दैट इज 230 to 250 volt single phase supply is required at your level. But if you are talking about the industrial load, so we required to connect the loads with the 11 kV feeder, then again it will be reduces at the 400 volt 3 phase supply system. So that is the basic overview of the your supply system. Now one by one we will discuss the different components. So generation substation is what? Generation substation is a power plant or the generating station is an industrial location where electrical power is generated in a large scale. So as I already told you कि the generation station is what? Generation station वो जगह है जहाँ पर आप large amount में electrical power को generate करते हैं. Second, a power plant contained one or more electrical generators. जो power plant है वहाँ पर एक ही जनरेटर नहीं हो सकता है, मे बी द सेवरल नंबर ऑफ जनरेटर्स, दैट इज नोन एज द मल्टीपल नंबर ऑफ यूनिट विच इज प्रेजेंट एट अ जनरेटिंग स्टेशन. सो इनका ओवरऑल पर्पस क्या है कि इट इज़ अ मशीन, दीज जनरेटर्स आर बेसिकली मशीन विच कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो बेसिकली दीज आर द सिंपल AC machines, or you can say the AC generators. Now the electric generators used in power plant to produce AC electric power and particularly called the alternators. So normally जो जनरेटर हमारे AC पावर जनरेट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम अल्टरनेटर बोलते हैं टेक्निकल टर्म में. नाउ द मोस्ट ऑफ द पावर स्टेशंस यूज फॉसिल फ्यूल्स सच एज coal, oil and natural gas to generate the electricity. Obviously for generating the electricity from the generator you require what? A prime mover. आपको जनरेटर को रोटेट कराने के लिए प्राइम मूवर चाहिए. प्राइम मूवर किससे चलेगा? इट रिक्वायर द मैकेनिकल एनर्जी. सो हाउ यू कैन गिव द मैकेनिकल एनर्जी? सो ऑब्वियसली यू रिक्वायर्ड एनी काइंड ऑफ इंजन काइंड ऑफ मैकेनिज्म. जैसा आपने आसपास में देखा होगा कि यू हैव अ कंबस्जन इंजन बेस्ड सम सिस्टम इज देयर एंड दैट इंजन विल ऑपरेट अ जनरेटर एंड यू विल गेट द इलेक्ट्रिक पावर. तो इसी टाइप का पावर स्टेशंस में भी क्या होगा? लार्ज स्केल पे टरबाइंस होंगी
वो टरबाइन क्या करती हैं, जो हमारी फ्यूल एनर्जी है, मे बी इट्स अ फ्यूल इन अ फॉर्म ऑफ ऑयल, गैस और द सॉलिड लाइक अ कोल, कुछ भी हो सकता है. सो इट विल बी कन्वर्ट द मीन्स आप इस पूरी जो फ्यूल एनर्जी है इसको कन्वर्ट कर देते हैं इन फॉर्म ऑफ अ मैकेनिकल एनर्जी थ्रू दीज टर्बाइंस. तो एक पूरा एक सिस्टम, एक मैकेनिज्म होता है, एंड वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर्स कि हाउ वी कैन कन्वर्ट द फ्यूल एनर्जी इन लाइक अ in terms of mechanical energy, then mechanical energy will be converted in a electrical energy. So generally हमारे जितने भी पावर स्टेशंस होते हैं वो आपके कोल, ऑयल और नेचुरल गैस पे ऑपरेट होते हैं. Now if we are talking about the next part, that is there are other sources too, such as nuclear power, hydro power एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. अगर हम फॉसिल फ्यूल को छोड़ दें, फॉसिल फ्यूल्स या फिर कोल, गैस या जो भी गैस या फिर आपके ऑयल जो प्रेजेंट हैं, अगर इनको हम हटा के अगर बात करें तो इसके अलावा और भी हमारे पास सोर्सेज हैं विच विल बी नोन एज अ लाइक अ न्यूक्लियर पावर, हाइड्रो पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जो कि नेचर में अवेलेबल है. सो नाउ द डेज द पीपल आर टॉकिंग अबाउट द दीज काइंड ऑफ सोर्सेज ऑल्सो. तो हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर यूनिट में इन्हीं सारे सोर्सेस को और उनका हाउ वी कैन कन्वर्ट दीज एनर्जी सोर्सेज इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम इस टॉपिक पे पूरा अपना फोकस रखेंगे. नाउ द नेक्स्ट वन इज योर ट्रांसमिशन सिस्टम. सो ट्रांसमिशन इज अ यू कैन से दैट इट इज लाइक अ इंटर स्टेट हाईवे और इलेक्ट्रिसिटी डिलीवरी. जो आपका ट्रांसमिशन सिस्टम है, इसको आप एक स्टेट हाईवे की तरह से देख सकते हैं कि जैसे स्टेट हाईवे ट्रांसपोर्टेशन के कहाँ पर यूज़ होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस को गुड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए आप एक मीडिया की तरह यूज़ करते हैं, मीडियम की तरह यूज़ करते हैं. सिमिलरली द ट्रांसमिशन सिस्टम इज़ व्हाट, इट इज़ अ लाइक अ इंटर स्टेट हाईवे फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक हाईवे का काम करता है. Then it refers to a part of electricity delivered that moves bulk electricity from the generation side over the long distance to the station closer to the area of the demand or the electricity. यानी इसका जो मेन पर्पज़ है वो बल्क पावर को आपके जो लोड स्टेशन है, यानी जो मेगा सिटीज़ हैं, बड़ी सिटीज़ हैं या एक रीजन है जहाँ पर पावर की कंज्यूम रिक्वायरमेंट है, वहाँ तक इसको पहुँचाना है या डिलीवर करना है. देन ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसफर लार्ज अमाउंट ऑफ द पावर एट द हाई वोल्टेज लेवल. और जो ट्रांसमिशन सिस्टम एज ऑलरेडी स्टेटेड कि इट इज़ ऑपरेटिंग एट द हायर वोल्टेज लेवल एंड दैट वोल्टेज लेवल इज अबव 132 kilovolt. Now the sub transmission system is what? Sub transmission systems are those circuits that supply the electrical power to the distribution substation. Several different substation system can supply the डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन. तो सब ट्रांसमिशन लेवल क्या होता है कि आपका जो मेन ट्रांसमिशन लाइन है वो बल्क अमाउंट में पावर को कैरी कर रहा है. नाउ इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ डिफरेंट एरिया. अगर हम बात करें एक ट्रांसमिशन लाइन है और ये लाइन हम क्या कर रहे हैं, कई डिफरेंट एरिया को कनेक्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं. सो सपोज दीज आर द डिफरेंट टाउन एरियाज एंड द सोसाइटी. तो इनको कनेक्ट करने के लिए हम उसको क्या करेंगे, सब ट्रांसमिशन लेवल में डिवाइड कर देंगे. सो सब ट्रांसमिशन लेवल का मेन पर्पज़ होता है कि जो मेन ट्रांसमिशन लाइन है यहाँ से पावर को डिफरेंट जोन के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तक ले जाना. सो दैट इज़ नोन एज योर सब ट्रांसमिशन लेवल. नाउ कॉमन सब ट्रांसमिशन वोल्टेजेस इंक्लूड 66 to 132 किलो वोल्ट. तो जनरली हमारा जो सब ट्रांसमिशन वोल्टेज लेवल होता है वो 66 kV से लेकर 132 किलो वोल्ट के बीच होता है. एंड हायर वोल्टेज सब ट्रांसमिशन लाइन कैन कैरी मोर पावर. जितना ज़्यादा हायर वोल्टेज साइड होगा आपका पावर कैरिंग कैपेसिटी लाइंस की ज़्यादा होगी और आपको ज़्यादा डिस्टेंस तक आप पावर को डिलीवर कर पाएंगे. सो दैट इज़ द ओवरऑल बेसिक्स रिलेटेड टू अ ट्रांसमिशन सिस्टम. नाउ इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, so the distribution system will be further categorized into two parts as already discussed in the first starting slides कि distribution system को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. सो distribution system is what? So distribution substation is located near or inside the city, town, village or industrial area.
तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सब स्टेशन कहाँ पर होता है? नियर टू द लोड स्टेशन। लोड क्या हो सकता है? सिटी एरिया हो सकता है, टाउन हो सकती है, आपका इंडस्ट्रियल एरिया भी लोड स्टेशन हो सकता है। नाउ इट रिसीव द पावर फ्रॉम द ट्रांसमिशन नेटवर्क एंड हाई वोल्टेज फ्रॉम द ट्रांसमिशन लाइन इज देन स्टेप डाउन बाय द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्योंकि इनका जो काम है डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन का, उसका जो मेन पर्पज़ है वो बस एक है कि जो आपका हायर वोल्टेज लेवल जो ट्रांसमिशन से आ रहा है दैट इज़ वेरी एट द वेरी हायर लेवल। सो अब उसे हमें रिड्यूस करना है, उस वोल्टेज लेवल को डाउन करना है यूजेबल फॉर्म के लिए लाने के लिए। सो वी रिक्वायर्ड अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर टू रिड्यूस दैट वोल्टेज। ओके, नाउ सो द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज इज यूजुअली व्हाट? तो हम कह सकते हैं कि प्राइमरी वोल्टेज विल बी 11 kV टू इज जनरलाइज यूजुअल वैल्यू, बट इन जनरल 2.4 kV से लेके 33 kV तक हम इसको यूज़ करते हैं। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इज ऑपरेटिंग एट द 33 kV टू 66 kV और 11 kV लेवल तक ये ऑपरेट हो सकते हैं। एंड बेसिकली दीज आर द 3 फेज 3 वायर सिस्टम। 3 फेज सिस्टम में दो तरह के सिस्टम यूज होते हैं, 3 phase 3 wire system and 3 phase 4 wire system. So the secondary distribution system having these things, कि जो secondary लेवल का हमारा distribution system होता है उसमें हम जनरली सिंगल फेज लेवल पे 230 वोल्ट यूज़ करते हैं और एट द 3 फेज लेवल वी आर यूजिंग द 400 वोल्ट सप्लाई सिस्टम। और जो हमारा वायरिंग सिस्टम होता है दैट इज़ 3 फेज 4 वायर सिस्टम। नाउ दिस इज द ओवरऑल स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ पावर सप्लाई सिस्टम। एज यू कैन सी हियर at the toppest one part is the large generator, thermal hydro nuclear plant सारे यहाँ पर होंगे। now it will be step down ट्रांसफार्मर से हमने वोल्टेज को स्टेप अप ट्रांसफार्मर से हमने वोल्टेज को इंक्रीज किया और ट्रांसमिशन लेवल तक ले आए। अब ट्रांसमिशन लाइन के दो काम हैं, either it will be deliver the power to the distribution network or it will be giving the power to the any other area. So this transmission line delivers the power to the sub transmission level 132 kV to 66 kV or again it will be step down at the primary distribution level. Primary distribution level is what? It delivers the power to the different kind of consumers through the primary level distribution network and then again it is connected to the secondary level distribution network and tie lines are for the different next area. So that is the just a basic schematic arrangement of a entire power supply system. Okay, so friend now I am going to discuss कि आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन किया और क्या क्या जाना और क्या उससे हमें क्या क्या फाइंडिंग्स मिली जो हमें आगे के लेक्चर्स के लिए समझने के लिए ज़रूरी होंगे। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पहले देखा कि एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या है पावर सिस्टम का, उसके मेजर कंपोनेंट क्या क्या हैं, लाइक जनरेटर, ट्रांसमिशन सिस्टम एंड योर लोड साइड। नाउ जनरेशन मीन्स व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ एनी जनरेटिंग स्टेशन, व्हाट आर द टाइप ऑफ जनरेटिंग स्टेशन। हमने कहा लार्ज स्टेशन जनरेटर्स होते हैं, मीडियम जनरेटर्स होते हैं, देन वी हैव टू सेट दैट एम्बेडेड जनरेटर्स भी होते हैं। उसके बाद हमने कहा कि ट्रांसमिशन सिस्टम इज़ फर्दर कैटेगराइज इनटू द 2 पार्ट, वन इज़ योर ट्रांसमिशन सिस्टम एंड सेकेंड इज़ नोन एज अ सब ट्रांसमिशन सिस्टम। तो जो मेन ट्रांसमिशन सिस्टम है उसका काम है पावर को सब ट्रांसमिशन सिस्टम तक ले जाना और सब ट्रांसमिशन सिस्टम उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है डिफरेंट एरिया में। उसके बाद फर्दर द पावर विल बी केम एट द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लेवल, जहाँ पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या करते हैं? बल्क लोड स्टेशंस को कनेक्ट करते हैं यानी लोड सेंटर्स को, एंड देन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई सिस्टम उस एरिया के कंज्यूमर तक पावर को डिलीवर करता है। सो दिस इज़ द ओवरऑल थिंग। नाउ हमने ये भी जाना कि हमें हर स्टेज पे डिफरेंट लेवल पे हमको ट्रांसफार्मर्स की रिक्वायरमेंट होती है टू मेक इट एज अ मीन्स वोल्टेज लेवल को हमको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए। तो हम जनरेटिंग स्टेशन साइड पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं, अब बाकी रेस्ट ऑफ द स्टेज पे हम क्या कर रहे हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स का यूज़ कर रहे हैं ना। उसके बाद हम लोगों ने इसके डिटेल्स को समझा कि क्या क्या उसमें पार्ट्स थे, उसके क्या क्या फीचर्स हैं ट्रांसमिशंस के, जनरेशंस के, डिस्ट्रीब्यूशंस के, और उन फीचर्स के बेसिस पे हमने एक चीज़ फाइंड आउट की कि हर एक सिस्टम के अंदर वोल्टेज लेवल अलग अलग हैं और इन वोल्टेज लेवल का एक अपनी इम्पॉर्टेंस है जो हम आगे के लेक्चर्स में ज़्यादा डिटेल में दिखेंगे कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज वोल्टेज लेवल। और इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी जाना कि जनरेशन
को हम कैसे कर सकते हैं, ट्रांसमिशन के टाइम पे हम जो वोल्टेज लेवल चूज़ कर रहे हैं वो क्यों चूज़ कर रहे हैं, और इसी के रिस्पेक्ट में फिर हम कंज्यूमर को फिर कैटेगराइज कर रहे हैं अलग अलग पावर लेवल के अकॉर्डिंग. सो दिस इज़ द ओवरऑल ग्लिम्स, ओवरऑल द थिंग्स विच वी हैव कवर्ड टुडे in this lecture, and in next lectures we will go into the detail of the entire power system network. Okay, so thank you.